السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب وأخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله۔ معزز سامعین اور ناظرین اور دیگر اسلامی بھائیوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج چھٹا درس کتاب کشف الشبہات کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس اہم موضوع کو سمجھنے اور سمجھانے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک یہ بات پہنچانے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پچھلے درس میں آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی اور بہت ساری باتیں بتائی گئی تھیں۔ ان میں سے چلتے چلتے آخر میں ایک بات بتائی گئی تھی کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، تمام انبیاء اور رسول کے پاس شیاطین، جنات اور دیگر شریر قسم کے لوگوں کو بھی بھیجا گیا بطور دشمن کے۔ یہ شاید آپ کو یاد ہو، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یعنی انبیاء، جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، سب کے سب کو دشمنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور جو یہ دشمن تھے وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی اور وقت کے نبی اور رسول کو جھٹلانے کی پوری کوشش کرتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ یہ بات بھی وہیں بتائی تھی آپ کو کہ جتنے بھی مخالف لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کہ عموماً وہ جاہل ہوتے ہیں، بلکہ وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ڈگری ہولڈرز لوگ ہوتے ہیں، اور کتابوں کو چھان مارتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں، ضخیم ضخیم کتابیں، اور اسی طرح سے علم ان کے پاس ہوتا ہے، اور اس لیے لیکن وہ اس علم سے وہ حق کے بجائے حق کو توڑنے کی دلیلیں ڈھونڈ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں طرح طرح کے وسوسے ان کے اندر ڈالتے ہیں، اور اسی طرح سے غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی بتلائی گئی تھی ساتھ ہی ساتھ کہ یہ اپنے مشن میں بڑے ہی جافشانی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، اور اپنے اس مشن کو بروئے کار لانے کے لیے اور اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے، اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے وہ پوری جتن کرتے ہیں۔ کوشش کرنے میں وہ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے، اور یہ جو دشمنان اسلام ہیں، جو دشمنان دین ہیں، جو دشمنان دعوت انبیاء و رسول ہیں، وہ ان کا پیران پیر ابلیس ہے، جس نے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور اتنی کوشش کروں گا، ایسے جال پھینکوں گا جن جال میں تیرے اکثر بندے پھنس جائیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم ان میں سے اکثر لوگوں کو اے اللہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ یعنی اکثر لوگ میرے اس جال میں پھنس چکے ہوں گے، اکثر لوگ میرے اس گمراہی میں آ چکے ہوں گے، میری اس چکنی چپڑی یہ باتوں میں وہ بالکل مکمل طور پر پھنس چکے ہوں گے میرے بھائی دوستوں۔ لیکن وہیں
یہ بات بھی آپ کو بتائی گئی تھی کہ اگر ایک انسان اللہ رب العزت سے لو لگائے اور اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس اور اس کی طرف سے جو حکمت بھیجی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور وہ تعلیمات، اگر ان تمام چیزوں پر کان دھرے، توجہ دے، اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائے، تو پھر ایسے لوگوں کو شیطان کے چیلے ہوں یا شیطان کا پیرانے پیر ابلیس کیوں نہ ہو، اس سے انہیں خوف اور اسی طرح سے حزن و ملال کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کے جو چال ہیں، اس کی جو مکاریاں ہیں، جو دسیسہ کاریاں ہیں، جو عیاریاں ہیں، وہ نہایت ہی پھسپھسی ہیں، کمزور ہیں۔ لیکن یہ کمزور سب کے لیے نہیں ہے، یہ کمزور صرف مومنوں موحدوں کے لیے ہیں، ان مومنوں کے لیے جو موحد ہوں۔ دیکھیں مومن بھی کئی ٹائپس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان ایسا ہے جو صرف ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، تو دنیا تو اسے مومن کہے گی، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ مومن نہیں ہوگا جب تک اس کی توحید پرفیکٹ نہ ہو، توحید اس کی خالص ہے اور سچی نہ ہو، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو، اس میں کہا تھا کہ اگر انسان اللہ رب العزت سے لو لگائے اور اس کی طرف سے بھیجی گئی آیات بینات کو پر کان دھرے، تو پھر شیطان کی چالیں اور اس کی مکاریاں، عیاریاں اور اس کی چال بازیاں، یہ سب کی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، نہایت ہی پھسپھسی اور کمزور ہیں۔ اور کیوں نہیں؟ صاحب کتاب آگے کہتے ہیں کہ اس لیے بھی کہ اللہ رب العزت ایک عام موحد کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ 1000 مشرکوں کے علماء پر وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف اگر 1000 مشرک علماء ہوں اور ایک طرف ایک عام موحد ہو، تو یہ عام موحد ان 1000 مشرکوں کے علماء پر بھاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہمارا ہی لشکر غالب ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ کا لشکر اس دھرتی پر انسان کی شکل میں اگر ہوگا تو وہ موحدین کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ توحیدی گروپ کے علاوہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا لشکر ہی غالب ہو کر کے رہے گا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ والے اس دھرتی پر ہمیشہ سے تھوڑے اور کم رہے ہیں، ہمیشہ سے تھوڑے اور کم رہے ہیں، ہر اعتبار سے کم رہے ہیں۔ وہ جسمانی اعتبار سے یعنی عدد کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں اور دیگر اعتبارات سے بھی اگر دیکھیں تو وہ کم رہیں گے، لیکن یہ اس جم غفیر پر، ان بڑی تعداد پر یہ بھاری تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ میرے بھائی دوستو، جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ایک بات اور سمجھے۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ رب العزت کا لشکر ہی دعوت دین اور جہاد کے ذریعہ غالب ہوتا رہے گا اور ہوتا ہوا آیا ہے، تو میرے بھائیو دوستو، ایسے موقع پر ظاہری اسباب کا اپنانا بھی از حد ضروری ہوتا ہے۔ باطنی اسباب اللہ رب العزت کے تئیں جو ایک موحد کو ہوتے ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن ظاہری اسباب کا اپنانا بھی ایسے موقع پر اور ضروری ہو جاتا ہے جب دشمن بالکل تیار ہو اور بالکل میدان جیتنے کے لیے ساری تگ و دو لگا دے اور جان توڑ کوشش کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان اس کے جتنے چیلے ہیں، جتنے اس کے چیلے چپیٹے ہیں، جتنے اس کے کارندے ہیں، جتنے اس کے رضاکار وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب ہمیشہ ہر آن مستعد رہتے ہیں۔ ان کے ہاں چھٹی وٹی نہیں ہوتی، وہ ویکنڈ ڈے نہیں مناتے میرے بھائیو دوستو۔ وہ رات ہو تو، دن ہو تو، عام دن ہو تو، خاص دن ہو تو، کام والے دن ہو تب بھی، چھٹی کے ایام ہو تو اور زیادہ وہ اور جو ہے مستعدی سے کام کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو اور ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے اور ہو گیا کہ ہمارا دشمن ہمیں گمراہ کرنے کے لیے پوری تگ و دو ہمیشہ سے کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے، وہ اس پر ذرہ برابر بھی سستی اور غفلت کا شکار نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے ترتیب بھی کرنی پڑے گی۔ دیکھیں
एक इंसान जंग के मैदान में जाता है, वो भले मजबूत क्यों ना हो, लेकिन उसके पास तीर तफंग होते हैं, तलवार होते हैं और दीगर चीज़ें होती हैं। क्यों लेके जाता है? क्योंकि ये ज़ाहिरी असबाब हैं। अब मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर आम मुवहिद है तो आम मुवहिद हो और बगैर हथियार के अगर राह हक में निकल पड़े तो जाहिर सी बात है उसके पसपा होने का इम्कान है। वो कहीं शकूक व शुबहात में पड़ सकता है, वो उनकी चिकनी चिपड़ी बातों में आ सकता है, वो उनकी तरफ से फेंके गए इल्ज़ामात को सही मान सकता है और शकूक व शुबहात में पड़ सकता है। इसलिए आम मुवहिदीन की भी जिम्मेदारी है कि अक़ीदे तौहीद की मोटी मोटी और बुनियादी चीज़ों को वो जानें, उसे समझें, उसे परखें, उसे सीखें, ताकि किसी भी तरफ से दुश्मन का कोई वार आए और वो हमला करके चला न जाए, वो कहीं असर अंदाज न हो। क्यों? इसलिए कि आम मुवहिद तो है, लेकिन उसके पास दलाइल का या इसी तरह से उन तमाम हक़ाइक़ की हकीकत उनके सामने अगर ना हो तो फिर एक इंसान आए और कोई बात कह जाए और कह के आम अंदाज में निकल जाए, और फिर इंसान का जहन ही तो है, वो कभी सोचने पर मजबूर हो सकता है कि हाँ यार उसने तो बात कही है, काबिल गौर तो है, सोचा जा सकता है, उस पर फिक्र करनी चाहिए। अब जब वो रुक कर ठिठकाए ही तो फिर गोया कि अब उसने एक गुमराही के रास्ते का दरवाज़ा खोल दिया। तो इसलिए मेरे भाई दोस्तों, अलबत्ता ख़तरा ये लगा रहता है मुवहिद को भी, जो आम किस्म के मुवहिद हैं, कि वो ऐसे ही है जैसे बग़ैर हथियार के मैदान में उतरा हुआ शख्स का इम्कान रहता है कि वो कहीं शिकस्त से दो चार ना हो जाए। इसी तरह से आम मुवहिदीन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अक़ीदे तौहीद के बारे में मोटी और बुनियादी चीज़ों का इल्म ज़रूर रखें, उसको बार बार पढ़ते रहें और उसका जो है तज़कीर रिमाइंडिंग करते रहें। मेरे भाइयों और दोस्तों, वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान ज़रूर किया है, उसका फ़ज़ल ज़रूर है कि उसने हमें एक ऐसी किताब दी है जो सरापा हिदायत है, जो सरापा रहमत है और मोमिनों के लिए खुशखबरी वाली किताब है, इसमें कोई शुबहा नहीं। और इस किताब के अंदर वो सारे दलाइल मौजूद हैं जिन दलाइल की बुनियाद पर बातिल के, दुश्मनाने दीन के, दुश्मनाने इस्लाम के और तमाम उसके अलावा जितने भी अंदाज से जो इस्लाम पर इल्गार करने वाले हैं, उन तमाम के दलाइल का तोड़ इस किताब के अंदर मौजूद है। लेकिन मेरे भाई दोस्तों, मौजूद तो है लेकिन उसे ढूंढना तो पड़ेगा ना, उसे लेना तो पड़ेगा, उसे समझना तो पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि किताब व सुन्नत से हमें काफ़ी हद तक करीब रहना चाहिए, उससे अपने रिश्ते को इस्तवार करते रहना चाहिए, मजबूत अपना रिश्ता मजबूत कुरान से होना चाहिए, क्योंकि दलाइल तो इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपकी निगाह वहाँ तक नहीं है तो दुश्मन आएगा, अपनी बात कोई कह के निकल जाएगा और आप वहम में या इसी तरह से शकूक व शुबहात में या वसवसे में पड़ सकते हैं। इसमें कोई शुबहा नहीं कि कुरान के अंदर अहले बातिल के तमाम दलाइल का अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया है। कुरान खुद कहता है, वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जिनाका बिल हक़ व अहसन तफसीरा, कि काफिर जब भी कोई नया एतराज़ कुरान पर तेरे पास लेकर के आते हैं, ये मुखातब नबी अकरम है, इन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जब भी जो मुनकिरीन हैं, जो कुरान पर एतराज़ करने वाले हैं, जो मुखालिफीन हैं, जब भी कोई नया एतराज़ घर करके लाते हैं, अल्लाह कहता है तो हम उसका सच्चा जवाब देते हैं, और इल्ला जिनाका बिल हक़, यानी मुकम्मल तौर पर सटीक जवाब देते हैं, वह अहसन तफसीरा, और इसी तरह उसके सारे मतलब को, मानी और मफाहिम को हम खोल भी देते हैं। ये कुरान की गवाही है और कुरान में जो कुछ है वो बिल्कुल सच है, हक है, गालिब होकर के रहने वाली किताब है। मेरे भाई दोस्तों, इस आयत करीमा की बुनियाद पर बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये आयत हर उस दलील के लिए आम है जिसे अहले बातिल क़यामत तक पेश करेंगे, यानी क़यामत की सुबह तक जितने अहले बातिल होंगे, जितने दलाइल लेकर के आएंगे इस्लाम के ख़िलाफ़, तौहीद के ख़िलाफ़ और मुवहिदीन के ख़िलाफ़ और अहले इस्लाम के ख़िलाफ़, उन तमाम के तमाम अहले बातिल के दलाइल का जवाब की खुशखबरी
देती है यह आयत करीमा। मेरे भाई दोस्तों, अब आइए हम सरसरी तौर पर आज मैं आपको बताऊंगा पहला शुबहा और उसका जवाब। पहला शुबहा, अब हम किताब के असल पर आए हैं। छठे दर्स में हम किताब की असल पर पहुँचे हैं, और ऐसा नहीं है कि जो 5 दर्स हुआ है इस किताब के से हटके है ना। इस किताब का कि ये सब तमहीदी गुफ्तगू थी, और ये तमहीदी गुफ्तगू अजहद ज़रूरी थी, क्योंकि अब जो गुफ्तगू होनी है वो कहीं ना कहीं पिछली सारी गुफ्तगू अगर आपके जहन में होगी तो फिर ये सब जवाबात सुनने में और फिर उन तमाम चीज़ों को समझने में आसानी होगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब ये साहिब किताब कहते हैं कि हमारे ज़माने के मुशरिकीन हमारे ख़िलाफ़ जो दलीलें पेश करते हैं, यानी वो जो अपने जो अक़ीदे घड़े हैं उन अक़ीदों पर जब वो कायम रहते हैं, जब उन अक़ीदों से उन्हें मना किया जाए, उस बातिल अक़ीदे से जो तौहीद के ख़िलाफ़ है, यानी जो शिरकिया उमूर हैं, उन तमाम चीज़ों से जब उन्हें मना किया जाए तो वो हमारे ख़िलाफ़ दलीलें पेश करते हैं। और उनके जवाब में कुरान के अंदर जो बातें अल्लाह ने बयान फरमाई हैं, उनमें से बाज़ बातें उनके जवाब के तौर पर साहिब किताब कहते हैं कि उनके उस जवाब के तौर पर कुरान में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई हैं, उनमें से कुछ का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ। ये साहिब किताब कह रहे हैं। मेरे भाई दोस्तों, तो वो कह रहे हैं कि अहले बातिल को जवाब 2 तरीक़े से दिया जा सकता है। अब याद रखिएगा, पहला नुक्ता क्या है? अहले बातिल, वो अहले बातिल जिस भी शक्ल में हों, जिस भी शक्ल में हों, जहाँ के भी हों, जिस भी दौर के हों, और वो अपनों में से हों या गैरों में से हों, उनका जवाब आप 2 तरीके से देंगे। याद रखिए, सबसे पहला कह रहे हैं एक मुजमल जवाब, एक होगा मुजमल जवाब, ठीक है, और एक होगा मुफस्सल जवाब। मुफस्सल में ये होगा कि उसकी जितनी शिक़ें हैं तमाम को खोल खोल करके बयान की जाएंगी, और मुजमल में ये होगा कि मुकम्मल तौर पर उसका जो लुब्बे लुबाब होगा, उसका जो हासिल होगा, जो हासिल कलाम होगा, वो पेश कर दिया जाएगा। तो पहले उसे मुजमल जवाब दिया जाएगा, बाद में उसे मुफस्सल जवाब दिया जाएगा। और मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो बात कही है कि पहले मुजमल क्यों दिया जाएगा और बाद में मुफस्सल क्यों दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में सूरे हूद में फरमाया, पहली आयत करीमा अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर, कि यही वो किताब है जिसकी आयात मुहकम हैं, जिसकी आयात मुहकम हैं, और इसी तरह से सुम्मा फुस्सिलत, फिर इनकी तफसील की गई है, तफसीर की गई है, तौज़ीह की गई है, उसे खोल खोल करके बयान किया गया है। मिन लदुन हकीमिन खबीर, बाखबर और हिकमत वाले रब की तरफ से। तो इस आयत करीमा को सामने रखते हुए साहिब किताब ने कहा कि जब अहले बातिल से जब हम जवाब देंगे तो उन्हें पहले मुजमल गुफ्तगू करेंगे, निचोड़ पेश कर देंगे, और फिर उसके बाद उसकी एक एक शिक को, एक एक जुज़ को हम उसकी फिर तफसीर और तौज़ीह और तफसीली गुफ्तगू करेंगे, जैसा कि कुरान का भी उसलूब है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब इन्होंने जवाब देने से पहले एक आयत करीमा और फिर उसी आयत करीमा की तफसीर और तौज़ीह करती हुई एक हदीस पाक पेश की है, और फिर गोया कि जवाब देने से पहले इन्होंने एक फिर हल्की सी तमहीद बांधी है, और ये तमहीद दरअसल तमाम जवाब का निचोड़ है, निचोड़ आप कह सकते हैं। अब देखें जरा आयत करीमा सुने। उन्होंने आयत करीमा पेश की है कि जो सूरह आल इमरान की आयत है, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमात हुन्न उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात, वही तो है यानी अल्लाह जिसने आप पर किताब नाजिल की। जाहिर बात है, आपसे मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वही से मुराद अल्लाह ताला, यानी वही तो है यानी अल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर एक किताब नाजिल की है, यानी कुरान। ठीक है, अब ज़रा सामने रखिएगा, ये पूरी आयत करीमा समझ जाएं तो आपको बहुत कुछ समझने में आसानी होगी। कह रहे हैं कि हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात,
इसकी कुछ आयात मुहकम हैं। मुहकम है क्या मतलब, यानी कुछ है जो कम है, कुछ आयात मुहकम है। मुहकम का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, उसका बिल्कुल सरीही और वाज़ेह माना समझ में आता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन आयतों में जो कुछ कहा है मुहकम आयात में, वो पढ़ते ही फौरन समझ में आती है कि अल्लाह क्या कहना चाहता है। मुहकम आयात हैं यानी जिनका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें किसी भी किस्म का शुबहा और इश्तिबाह पैदा नहीं होता, उसके अलग से कई और मानी और मतालिब आदमी अपने मन से निकाल नहीं सकता। यानी बिल्कुल दो दो चार की तरह से वाज़ेह और क्लियर हैं कुछ आयात। मिनहु आयातुम मुहकमात। अब जो उसके बाद एक नुक्ता अल्लाह ने बयान फरमाया वो काबिल गौर है। हुन्ना उम्मुल किताब, यही वो चीज़ है जो काबिल गौर है। हुन्ना उम्मुल किताब, और यही जो मुहकम आयात हैं ये पूरी किताब की असल बुनियाद है। यानी इस पूरी किताब की जो बुनियाद है वो यही मुहकम आयात है। इन्हीं मुहकम आयात की बुनियाद पर हमें अपने अकायद और अपने आमाल करने हैं। अकायद की इस्लाह करनी है और अकायद को इस्तवार करना है और आमाल को बजा लाना है। यही जो मुहकम आयात हैं हुन्न उम्मुल किताब, यही असल किताब हैं। इसी पर किताब की जो है असल बुनियाद है और इस किताब की असल यही आयात है जो बतौर बुनियाद के हैं, जो फंडामेंटली आप कह सकते हैं फंडामेंटल है। ठीक है। वह उखर मुतशाबिहात, और उसके अलावा जो दूसरी आयात हैं वो मुतशाबिह हैं, गडमड हैं। यानी उसके कई मानी, कई मतालिब और कई तफसीरें की जा सकती हैं, उसके मानी और मतालिब बहुतेरे निकल सकते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कुछ आयात मुहकम हैं जो बिल्कुल वाज़ेह हैं, जिनका मतलब बिल्कुल साफ और सीधा है, पढ़ते ही उसको आदमी के समझ में आ जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहना चाहता है, इसमें क्या हुक्म है। जो असले किताब है यही असल मतलूब है, इसी पर यही बुनियाद है। उसके अलावा जो गडमड आयात हैं, मुतशाबिह आयात हैं, जिसके कई मानी और मतालिब निकल सकते हैं, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, ज़रा गौर कीजिए। जो असले किताब है, जो मुहकम आयात हैं, इसके बारे में क्या कहा, यही असले किताब है, इसी पर बुनियाद है। और जो गडमड आयात हैं जिसके कई मानी निकल सकते हैं, जो मुतशाबिह यानी मुतशाबिह जो आयात हैं, उसके बारे में अल्लाह फरमाता है फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन। अब जिन लोगों के दिलों में कजी है, टेढ़पन है, जिनके दिलों में टेढ़पन है, जिनके दिल साफ नहीं हैं, जिनके दिल गंदे हैं, गंदे दिलों वाले, फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, तो अब रहे वो लोग जिनके दिलों में कजी है, टेढ़पन है, जिनके दिल साफ सुथरे नहीं हैं इस्लाम के तई, अहले इस्लाम के तई। अब आगे अल्लाह क्या फरमाता है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना, तो वो मुहकम आयात को जो असल हैं छोड़कर मुतशाबिह आयात के पीछे पड़ते हैं, मुतशाबिह आयात को ढूंढते हैं और फिर उससे अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने मतलब का माना और मफ़हूम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? अल्लाह ने दो वजह बयान की है, मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तावीली, ताकि माहौल और मुआशरे में फितना बर्पा कर सकें और अपना उल्लू सीधा कर सकें, अपनी बाजार चमका सकें। अब देखें, ये आयत करीमा मुकम्मल नहीं है, ये मैंने उसका टुकड़ा है शुरू का। अब अगर ये आयत करीमा पढ़ लिया आपने, समझ लिया, सुन लिया, अब मैं ज़रा फिर खुलासा कर देता हूँ आयत करीमा का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब नाजिल की है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस किताब के अंदर कुछ आयात ऐसी हैं जो मुहकम हैं, बिल्कुल वाज़ेह हैं, यही असल हैं, और उसके अलावा कुछ मुतशाबिह आयात हैं। तो मुतशाबिह आयात में जिनके दिलों में कजी है, टेढ़पन है, जो कजरौ हैं,
जो बदबातिन हैं, ऐसे लोग उन मुहकम आयात को छोड़कर इन मुतशाबिह आयात के अंदर घुसते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं। दो वजह से, एक तो ये है कि ताकि माहौल और मुआशरे में फितना बरपा हो, फितना पैदा हो सके, और इब्तिगा तावीली, और अपना उल्लू सीधा कर सकें, अपनी बात पर दलील ढूंढ सकें, दलील घड़ सकें। तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए और माहौल और मुआशरे में फितना परवरी के लिए ये मुहकम आयात को छोड़कर मुतशाबिह आयात के पीछे पड़ जाते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अब अगर आप अंदाज़ा कर लें, अब आप अगर अंदाज़ा करें कि जो लोग मुहकम आयात को जो असल हैं छोड़कर मुतशाबिह के पीछे पड़ेंगे, अब आप बताएं वो सीधे डगर पर कब चल सकते हैं और सीधे डगर पर लोगों को कब चलने देंगे? जाहिर सी बात है, न वो सीधे डगर पर चलेंगे, न वो सीधे डगर पर चलने देंगे। इसके लिए वो पूरी तगोदो करेंगे, क्योंकि फितना परवरी उनका मकसद असली है और अपना उल्लू सीधा करना उनकी ज़िंदगी का असल मरकज़ी नुक्ता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इसी से मिलती जुलती आयत करीमा भी है। नबी अकरम फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु, कि जब तुम उन ऐसे लोगों को देखो जो कुरान की मुतशाबिह आयात के पीछे पड़े हों, तो समझ लो कि यही वो लोग हैं जिनका अल्लाह ने कुरान में फ़उलाइकल्लज़ीना सम्मल्लाहु, तो यही वो लोग हैं जिनका अल्लाह ने कुरान में नाम लिया है। किनका नाम लिया है? फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, कि जिनके दिलों में टेढ़पन है, कजी है, ऐसे लोग फितना परवरी के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुतशाबिह आयात के पीछे पड़ जाते हैं। नबी अकरम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो लोग मुतशाबिह आयात के पीछे पड़े, समझ जाएं कि इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा है कि इनके दिलों में टेढ़पन है, ये इनके दिलों में मर्ज है और ये बीमार हैं दिली तौर पर। अब आपने, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे एक जुमला फरमाया, फ़हज़रूहुम, बचना इनसे, इनसे दूर रहना, यानी इनकी सोच, इनकी फिक्र, इनके अकायद से भी बचना और इनसे भी बचना, यानी ऐसे लोगों की महफिलों से, ऐसे लोगों की सोहबत से भी बचना और ऐसे लोगों के प्रचार से भी बचना, ऐसे लोगों की कही गई बातों से, इनके अकायद से, इनकी सोचो फिक्र से भी बचना, तभी जाकर के अपने आप को बचा सकते हैं। अब आगे आइए, पहला शक और शुबहा। मेरे भाई दोस्तों, साहिब किताब कहते हैं कि अब अगर कोई मुशरिक आपसे कहे कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून व अन्न शफाअत हक़्क़ुन व अन्नल अंबिया लहुम जाहुन इंदल्लाह औ ज़करा कलामन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तदिल्लु बिही अला शैइन मिन बातिलिही व अंत ला तफ़हम मअनल कलाम अल्लज़ी ज़करहु फजाविबहु बिक़ौलिका इन्नल्लाह ज़करा फ़ी किताबिही अन्नल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन यतरुकूनल मुहकम व यत्तबिऊनल मुतशाबिह। अब ज़रा सुनिए, कहते हैं कि अब अगर कोई मुशरिक आपसे कहे कि कुरान में क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, कि ख़बरदार, मुतवज्जे हो जाओ, आगाह हो जाओ, याद रखो कि यकीनी तौर पर अल्लाह के औलिया हैं जिन्हें ना डर होगा ना वो गमगीन होंगे। यानी यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलियाउल्लाह के बारे में बयान फरमाया कि जो हकीकत में अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के वली हैं, उन्हें न कोई डर होगा ना वो गमगीन होंगे। तो यहाँ औलियाउल्लाह की फजीलत व अहमियत बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि उन्हें ना यहाँ कोई हुस्न व गम होगा, मलाल होगा, ना वहाँ वो गमगीन होंगे। यानी अल्लाह उन्हें नवाजेगा, यहाँ भी उनका शरह सदर होता रहेगा और वहाँ भी अल्लाह अपनी नेमतों से, अपने ख़ास फजल करम से नवाजेगा। ये आयत करीमा का मफ़हूम है। और मेरे दोस्तों, आगे मुशरिक क्या कहेगा कि देखो औलियाउल्लाह की अहमियत और उनका मकाम व मर्तबा, अल्लाह की के यहाँ उनकी आवभगत और इसी तरह से अल्लाह की महबूबियत क्या बरहक नहीं है? इसमें कोई शुबहा नहीं है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में अल्लाह के जो औलिया हैं महबूब हैं, उनका मकाम है, उनका मर्तबा है, अल्लाह इनसे राज़ी है, सब बचा है। आगे फिर कहेंगे कि क्या ऐसा नहीं है कि शफाअत बरहक है। पहला नुक्ता क्या है कि अल्लाह के जो औलिया हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका ख़ास ख्याल रखा है कि जो ना उन्हें किसी किस्म का डर खौफ होगा और ना ही वो गमगीन और रंजूर होंगे, उन्हें किसी किस्म का गम और रंज होगा। और साथ ही साथ वो ये भी कहेंगे कि क्या शफाअत बरहक नहीं है, यानी सिफारिश अल्लाह के औलिया करेंगे और इसी तरह से अंबिया और रसूल करेंगे, हत्ता कि मोमिनीन भी करेंगे। तो कहने की बात है कि वो एक अलग मसला है, मुस्तकिल मसला है, उधर नहीं, बस तफसीली गुफ्तगू यहाँ मुजमल गुफ्तगू कि शफाअत बरहक है वो आपसे कहलवाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है कि औलिया का मकाम है अल्लाह की निगाह में और शफाअत बरहक है, ये भी मुसल्लम है। कहते हैं या ये कहे कि अल्लाह के यहाँ अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम का बड़ा मकाम व मर्तबा है, या अपने बातिल अकीदे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से इस्तिदलाल करे, यानी कोई हदीस इस माना की ला करके वहाँ पेश करे जिससे शफाअत के बरहक होने का या इसी तरह से औलियाउल्लाह के मकाम व मर्तबे की बात वाज़ेह होती हो, और साथ ही साथ कोई ऐसी हदीस ला करके वहाँ टच कर दे जिससे वो अपना उल्लू सीधा करने लगे। और वो उल्लू क्या सीधा करना है कि ये अल्लाह के औलिया हैं तो हम इनको अपने बीच में वास्ता और वसीला बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह के यहाँ इनका बड़ा मकाम व मर्तबा है, अल्लाह के यहाँ इनका मकाम व मर्तबा है। इस पर वो दलील देंगे कि इनका मकाम व मर्तबा है, लेकिन इस मकाम व मर्तबे को बुनियाद बना करके वो अपने और अल्लाह के बीच में वास्ता और वसीला इन्हें पेश करेंगे, इन्हें बतौर वसीला पेश करेंगे। इस पर उनके पास दलील नहीं होगी, इस पर इनके पास वो दलील होगी जो घुमाएंगे आवाम को कि देखो अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा मकाम है, बड़ी अहमियत है, बड़े जाहो मर्तबा है, अल्लाह के महबूब हैं। तो अल्लाह के महबूब को हम बीच में रखते हैं। अब जो ये बीच में जो रखना जो इनका अमल है, इस अमल की दलील उनके पास सरीही और मुहकम नहीं है, वो घुमा के लाएंगे, मुतशाबे आयात को ला करके यहाँ फिट करेंगे। मुतशाबे, अब देखें या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। अब ये जो वसीला है, जो वसीला का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह और बंदा और अल्लाह इन दोनों के बीच में किसी तीसरे को, चाहे वो अल्लाह का वली हो चाहे नबी और रसूल हो, उसे ला करके पेश कर दिया जाए। ये कुरान की इस आयत करीमा की तफसीर में किसी सहाबी ने नहीं किया है, और किसी भी जो है तफसीरी रिवायात में जो मोतबर हैं कहीं आपको नहीं मिलता। तो फिर वही है ना कि फ़यत्तबिऊन मा तशाबह, कि वो उखर मुतशाबिहात, जो मुतशाबिह आयात हैं जिनके कई मानी निकल सकते हैं, तो उन मानी के पीछे पड़ करके फितना परवरी के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए बीच में उसे घुसेड़ेंगे। अब देखें मेन दलील क्या है कि औलियाउल्लाह का मकाम है अल्लाह की निगाह में, और सिफारिश और शफाअत बरहक है। अब ये सिफारिश बरहक है, हदीस है, कुरान है, क्लियर है, और औलियाउल्लाह का मकाम व मर्तबा अल्लाह की निगाह में वाज़े है, ये भी कुरान और हदीस से क्लियर है। अब दो दलील दी है, एक औलियाउल्लाह का मकाम व मर्तबा को वाज़े करने के लिए, दूसरा शफाअत बरहक है इसकी वजाहत के लिए। बीच में एक अपना अकीदा घुसेड़ा, जिस अकीदे पर दलील वो दी है फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिगाअल फितना व इब्तिगाअ तावीलिह, उस पर मुहकम दलील नहीं दी, मुहकम आयत पेश नहीं की, मुहकम कोई हदीस पेश नहीं की। उस पर क्या हुआ, मुतशाबिह आयात या मुतशाबिह दलाइल रख करके वो कूदने और फलागने की कोशिश की। अब आगे शेख मोहतरम फरमाते हैं, कहते हैं कि जब इस तरह की बात कोई करे, यानी इन दोनों नुक्तों को बुनियाद बना करके अगर कोई कहे कि हम इनकी इबादत तो नहीं करते, इनकी परस्तिश तो नहीं करते, हाँ चूँकि ये अल्लाह के महबूब हैं तो इनकी इन महबूबियत को बुनियाद बना करके, और चूँकि शफाअत भी बरहक है तो शफाअत भी बरहक है, और ये महबूब भी हैं, तो जब शफाअत हमें करवानी ही है, शफाअत जब किसी ने करनी ही है, तो क्यों ना हम अल्लाह के महबूब बंदों को बीच में यहीं से शुरू कर दें।
اب یہ نقطہ ہے وہ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کو بیچ میں رکھتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہوتی۔ اچھا وہ آگے ایک جملہ اور کہتے ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، انبیاء کو چھوڑ دیں، اس پہ ایک الگ گفتگو ہے، انبیاء کو چھوڑ کر مجھے آپ بتائیں کون گنہگار نہیں ہے؟ انبیاء کو چھوڑ کر مجھے بتائیں کون ہے وہ شخص جو گنہگار نہیں ہے؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ آپ کوئی ایسی جنریشن بتائیں، کوئی ایسی جماعت بتائیں جو گنہگار نہ ہو۔ اب آئیے چلتے ہیں آگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود جماعت تھی وہ صحابہ کی جماعت، ان کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان سے خطائیں نہیں ہوئیں، تو ان سے خطائیں ہوتی تھیں، چھوٹی بڑی جو کچھ بھی ہوئیں۔ یہ بتائیں ان خطاؤں کے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی عبادت کیسے کی، اللہ کو کیسے پکارا؟ اللہ رب العزت کو جب انہوں نے پکارنا ہوا، جب کچھ لینا ہوا، گناہوں کی معافی تلافی کرنی ہوئی اور کوئی مسئلہ ہوا، اللہ سے اپنے رشتے کو جو مضبوط کرنا ہوا، استوار کرنا ہوا، تو ان لوگوں نے کون سا طریقہ اپنایا؟ جو طریقہ انہوں نے اپنایا وہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا ہے۔ انہوں نے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم واسطہ کیا ہو سکتا تھا؟ واسطہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی نہیں کہا کہ اے اللہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اے اللہ میرے بچہ نہیں، میرا اولاد نہیں، میری رزق نہیں، میرا یہ نہیں، میرا وہ نہیں، چونکہ یہ محبوب ہیں تیرے، اس میں کوئی شبہ نہیں، محبوبوں کے سردار ہیں، تو چونکہ لگا کر کے، چونچرا کر کے، اگر مکر کر کے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بہرحال بات آگے نکل جائے تو میں کتاب پہ آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یستدل بہ علی شیء من باطل، تو باطل طریقے سے وہ کچھ چیزوں سے وہ اپنے الو کو سیدھا کرتے ہوئے دلیل کے طور پر کچھ چیزیں پیش کریں گے۔ وانت لا تفهم معنی الکلام الذی ذکرہ، حالانکہ وہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہوگی جس کا وہ تذکرہ کریں گے، یعنی مارے گھٹنا پھوٹے سر، مارے گھٹنا پھوٹے سر والی بات کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فجاوب بقولک، تو تم اپنی بات اسی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ جو ٹکڑا ہے کہ وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ آیت کریمہ ان کے سامنے رکھیے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گفتگو کی جائے گی جو محکم اور متشابہ والی، تو یہ محکم اور متشابہ والی جو گفتگو ہے، یہ اگر اللہ رب العزت کسی کو توفیق دے دے تو اتنا جواب ہی کافی ہے، اتنا جواب ہی کافی ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ وما ذکرتہ لک من ان اللہ تعالی ذکر ان المشرکین یقرون بالربوبیہ، اور آپ کو پتہ ہے، آپ یہ بھی کہیں کہ اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار مشرکین مکہ کرتے تھے۔ وَأَنَّ كُفْرَهُمْ بِتَعَلُّقِهِمْ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ مَعَ قَوْلِهِمْ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ اپنے اس کفر کے ساتھ ہی ساتھ ان کا جو تعلق تھا ملائکہ پر، انبیاء پر، اولیاء پر، اور اس ساتھ کیا کہتے تھے؟ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، نہ نہ نہ، وہ ایسا نہیں کہتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے مالک ہیں، یہ ہمارے رازق ہیں، یہ ہمارے مدبر ہیں، یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں، یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، وغیرہ وغیرہ، نہ، وہ ان تمام چیزوں کو جانتے تھے اور مانتے تھے کہ ہر قسم کا خالق و مالک، مدبر و منتظم، نفع و نقصان دینے والا ہر طرح سے اللہ رب العزت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے ربوبیت میں۔ اور جب الوہیت کی بات آتی تھی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی عبادات میں ملائکہ اور انبیاء اور اولیاء وغیرہ کو ساتھ میں بطور وسیلہ اور واسطہ لگاتے، جب ان کو اعتراض کیا جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، نہ نہ نہ، ہم ان کی پرستش نہیں کرتے، ہم انہیں مالک نہیں مانتے، ہاں اللہ کے مقرب ہیں، تو ان مقرب کی وجہ سے ہم انہیں اللہ کے درمیان سفارشی بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہی کچھ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں کلمہ گو مسلمان سیم یہی طریقہ، یہی طرز، یہی جواب، یہی دلیل، کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کلمے کا اقرار نہیں کیا، یہ کلمے کا اقرار کرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ کریلا نیم چلا ہے۔ ایک آدمی کلمے کا اقرار نہ کر کے
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुबूबियत का मुकम्मल इकरार करे और उलूहियत में यानी जब वो दुआ करे, नमाज दुआ करे और दीगर जो इबादत वगैरह करे वो करते थे, दीगर इबादत के साथ दुआओं के साथ वो अपने मलाइका फरिश्ते और उनको साथ में मिला लेते सिफारिशी के तौर पर, तो वो तो ईमान नहीं लाए तब वो ऐसा करते थे। यहाँ आज का मुसलमान ईमान भी लाता है, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भी करता है, सुबह शाम उसका विर्द भी करता है, साथ ही साथ तौहीद रुबूबियत को मान करके तौहीद उलूहियत में अपने बुजुर्गान दीन और औलिया और सालिहीन, कभी नबी की शक्ल में, कभी फरिश्तों की शक्ल में, कभी जिन और भूत और प्रेत की शक्ल में, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से बाद आला सही और गलत, कुछ औलियाउल्लाह सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ यूँ ही फ़र्ज़ी हैं। तो फ़र्ज़ी और गैर फ़र्ज़ी, हकीकी और फ़र्ज़ी, इन तमाम में से जिनको चाहा उन्होंने पूजना शुरू कर दिया और फिर उनको बीच में वास्ता और वसीला के तौर पर पेश किया और क्या कहा कि नहीं ये चूँकि अल्लाह के महबूब हैं, हम इन्हें बतौर वास्ता और इन्हें पेश करते हैं चूँकि ये अल्लाह के मुकर्रब हैं। सेम यही जवाब, हूबहू यही जवाब कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन अरब का हुआ करता था। मेरे बात दोस्तों कह रहे हैं हादा अम्रुन मुहकम बैना ला यक़दिरु अहदुन अन युग़य्यिर माना। अब ये अगर मुहकम बात उसके सामने रख दी जाए और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की कुछ लाज उसके अंदर दिल में हो, जगह और मकाम हो, तो फिर ऐसे शख्स को इसके अलावा इसका कोई दूसरा माना निकालने का चांस नहीं रह जाता। मेरे भाई दोस्तों, ये तो नहायत ही सरसरी गुफ्तगू है। और आगे कहते हैं वमा ज़करता ली अय्युहल मुशरिक मिनल कुरान औ कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला आरिफ मानाहा वलाकिन अक़तअ अन्न कलाम अल्लाह ला यतनाक़दु व अन्न कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युख़ालिफ़ु कलाम अल्लाह। बड़ी ऊँची बात कही है। अब ज़रा आप यहाँ गौर करें, कहते हैं लेकिन आपने जो कुरानी आया देखें, अब इन्होंने यानी मुशरिक जो शिरक करते हैं यानी अल्लाह के साथ किसी अल्लाह के वली को बतौर वसीला बतौर वास्ता पेश करते हैं, ये कह करके कि शफाअत चूँकि बरहक है और ये अल्लाह के महबूब हैं इसलिए हम इनको बतौर वसीला पेश करते हैं। तो बतौर वसीला के जो मुतशाबिह आयात जो बतौर दलील पेश करते हैं उस सिलसिले में आप एक मुजमल जवाब सामने रखें। वो कहते हैं लेकिन आपने जो कुरानी आयात या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान की है, मैं उसकी वजाहत पूरी तरह तो नहीं कर सकता, ताहम ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अल्लाह के कलाम में तारुज़ नहीं है, यानी अल्लाह का कलाम आपस में एक दूसरे से टकराता नहीं है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम इलाही के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई दो बात कहे और दोनों आपस में टकराए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात फरमाएं जो कुरान के ख़िलाफ़ हो, अब अगर ये बात समझ में आ गई, पहली बात क्या समझाई उन्होंने कि कुछ आयात मुहकम हैं, कुछ मुतशाबे हैं, जो मुहकम है वही असल हैं, मुतशाबे के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आगे चलते चलते इन्होंने समझाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कलाम हमें बतौर हिदायत के, बतौर रहमत के, बतौर खुशखबरी के जो दिया है, जो किताब हिदायत है, उस किताब हिदायत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपस में टकराती हुई कोई बात पेश नहीं की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसी तालीम नहीं दी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से टकराए या उसके ख़िलाफ़ हो। अब अगर ये नुक्ता समझ में आ गया कि अल्लाह ने कोई ऐसी बात नहीं की जो आपस में टकराए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी तालीम नहीं दी जो अल्लाह के कलाम के मुखालिफ हो या उससे टकराती हो, अगर ये नुक्ता समझ में आ गया तो फिर अब कहते हैं कि ये एक ऐसा उम्दा जवाब है, ये समझाइए उसको कि अल्लाह के कलाम में जब टकराव नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम और कलाम इलाही में जब कोई टकराव नहीं है, तो अब मुहकम आयात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को डायरेक्ट पुकारा जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डायरेक्ट मांगा जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में किसी को शरीक ना किया जाए। इसकी मुहकम आयात बहुतेरी हैं,
बेशुमार आयात, बेशुमार अहादीस मुस्तफ़ा मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत, चाहे वो दुआ की शक्ल में हो, चाहे वो ज़ब्ह की शक्ल में हो, चाहे वो नज़र की शक्ल में हो, चाहे इस्तिग़ासा इस्तिआना की शक्ल में हो, चाहे वो इस्तिमदाद की शक्ल में हो, या वो कौली हो, या वो अमली हो, या रूहानी हो, कोई भी इबादत हो, कोई भी इबादत हो, उस इबादत में बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा सकता। ये मुहकम आयात में मौजूद है, मुहकम हदीसों में ये बात मौजूद है। तो फिर अब आप एक ऐसी बात पेश कर रहे हो, अगरचे आप बतौर दलील कुरान से ला रहे हो या बतौर दलील हदीस मुस्तफ़ा से ला रहे हो, जो मुहकम नहीं बल्कि मुतशाबिह है, और मुतशाबिह मुहकम का मुकाबला नहीं कर सकता। एक आदमी हट्ठा कट्ठा नौजवान हो, उस नौजवान के मुकाबले में लूले और लंगड़े को ला करके पेश किया जाए तो ये बात काबिल कबूल नहीं, और ये अकल में भी आने वाली बात नहीं है। तो मुहकम आयात के मुकाबले में मुतशाबिह आयात ला करके पेश कर दिया जाए, या मुहकम इसी तरह से सरीही अहादीस मुस्तफ़ा के होते हुए आप अपना दूर से कोई ऐसा माना अखज़ करके ला करके उस हदीस मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ कोई अक़ीदा पेश करना चाहें, कोई राय देना चाहें, कोई सोच और फ़िक्र पेश करें, तो ये काबिल कबूल है, नहीं हो सकता। मेरे भाइयों से कहते हैं ये एक उम्दा जवाब है, इसे मामूली ना जाने, लेकिन इस जवाब की कदर व कीमत वही समझ सकता है। अल्लाह अकबर, बड़ी ऊंची बात कही। इस जवाब की कदर व कीमत वही समझ सकता है जिसे अल्लाह ने तौफीक दी हो, उसकी हैसियत वही है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, वमा युलक्काहा इल्ला लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये बात उन्हीं को हासिल होती है, ये चीज़ें उन्हीं को हासिल होती हैं और मिलती हैं, मैसर होती हैं जो सब्र करते हैं और उन्हीं को उसकी तौफीक होती है जो नसीबे वाले हों, नसीब वाले हों, किस्मत वाले हों। हर एक को ये तमगा नहीं मिलता, हर एक को ये खुशबख्ती हासिल नहीं होती। ये बड़े खुशबख्त लोग हैं जिन्हें ये खुशबख्ती हासिल होती है। मेरे भाई दोस्तों, आगे कहते हैं मुफस्सल जवाब ये है। अब ज़रा मैं इसका मुफस्सल जवाब पेश कर दूँ, बात लंबी हो गई, और बहरहाल थोड़ा सा ये मुफस्सल जवाब ये है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम के दीन पर दुश्मनाने तौहीद को बेशुमार एतराज़ात हैं। यानी अम्बिया ने जो तालीमात लाए हैं उन पर दुश्मनाने दीन ने बेशुमार एतराज़ात किए हैं, जिनके ज़रिए वो लोगों को गुमराह करते हैं। उनका कहना यह है कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते, बल्कि इस बात की शहादत देते हैं कि अल्लाह खालिक है, राज़िक है, नफ़ा और नुकसान का मालिक है, और वो अकेला है, इसमें कोई शरीक नहीं है। और वो इस बात की भी गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं हैं, चे जाए कि अब्दुल कादिर जीलानी हो या दूसरे बुजुर्गान दीन हो। ठीक है, का आगे कहते हैं लेकिन चूँकि, यानी हम इस बात को पहले तो वो इकरार करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही खालिक व मालिक है, मुदब्बिर है, मुंतज़िम है, नफ़ा नुकसान का मालिक है। नफ़ा नुकसान के मालिक तो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं है, चे जाए कि अब्दुल कादिर जीलानी ही क्यों ना हो। तो जब नबी अकरम नहीं तो अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से हो सकते हैं। कहते हैं हाँ, अलबत्ता चूँकि हम गुनहगार हैं और बुजुर्गों का अल्लाह के यहाँ मकाम मर्तबा है, इसलिए उनके वास्ते से हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं। सवाल हम अल्लाह से करते हैं, लेकिन इनके वास्ते से करें। इस दलील का आप ये जवाब दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों से क़िताल किया, लड़ाई झगड़ा किया, जिहाद किया, वो भी इन बातों का इकरार करते थे। गुफ्तगू आ चुकी है, इशारा कर रहा हूँ मैं। और वो ये कहते थे कि उनके पास नफ़ा नुकसान का अख्तियार तो नहीं है। यानी इन जो इनके माबूदान थे, वद सुवा यगूस यऊक नसर और जो दीगर अम्बिया औलिया जो पहले के जो अम्बिया औलिया थे उनको जो वो पूछते थे, वो तो उनको कहते थे कि इनके पास अख्तियार नहीं है नफ़ा नुकसान का, लेकिन हम इनके वास्ते से जाहो मर्तबा और शफाअत के तलबगार होते हैं। यानी चूँकि इनका मकाम है तो इसलिए हम इनके तवस्सुस से, इनके वास्ते से हम शफाअत के अल्लाह से शफाअत चाहते हैं। साथ ही आपने उन्हें कुरान की आयतें पढ़कर सुनाएं और उनकी वजाहत कर दें। यानी जो आयत आपको बयान की गई कि कुफार मक्का मुशरिकीन अरब वगैरह अल्लाह रब्बुल रुबूबियत का इकरार करते थे, सब कुछ कहते थे, लेकिन आगे चल करके वो कहते हैं हम चूँकि गुनहगार हैं, ये लोग पहुँचाए हैं, तो हम इनको बीच में वास्ता बना करके पेश करते हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, जो कुछ अकीदा, जो कुछ सोच, जो कुछ अमल और जो कुछ जवाब
اس وقت کے مشرکین عرب دیا کرتے تھے سیم ٹو سیم، وہی جواب، وہی سوچ، وہی عقیدہ، وہی عمل آج کا نام نہاد اس ایمان کا دعوے دار مسلمان بھی کرتا ہے۔ اب وہ مشرک ٹھہرے، اسی عمل کو کر ایک دوسرا انسان موحد کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ میرے بھائی دوستو، باتیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ پھر آگے گفتگو آئیں گی۔ میں ہی روکتا ہوں، ایک آیت کریمہ پڑھ کر کے آپ کو ایک آخری درس دے کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں جہاں تذکرہ کیا ہے رمضان کا، روزوں کا، قرآن کے نزول کا، چلتے چلتے وہاں پر اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بارے میں میرے بندے پوچھتے ہیں، یعنی میں قریب ہوں یا دور ہوں۔ چونکہ دعا کرنا ہے تو ہم دعا اللہ رب العزت سے کیسے کریں؟ اللہ سے ہمیں مانگنا ہے تو ہم کیسے مانگیں؟ ہمیں بتایا جائے کہ وہ دور ہے یا نزدیک ہے، قریب ہے، تاکہ ہم اسی حساب سے ذرا پکاریں اس کو، اس سے سرگوشی کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس جواب میں قرآن میں جب فرمایا تو یہ نہیں کہا فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيبٌ۔ اس کے علاوہ قرآن میں جہاں جہاں بھی لوگوں نے سوال کیا ہے، چاہے وہ اپنوں نے سوال کیا ہے احکام و مسائل کے جاننے کے لیے، یا غیروں نے سوال کیا ہے، خام خواہ سوال کیا ہے بس یوں ہی کہ نبی برحق ہے نہیں ہے، یا اس کو پھنسانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، تو غیروں نے جب سوال کیا ہے یا اپنوں نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب قرآن میں اللہ رب العزت نے دینے سے پہلے قل کہا کہ اے نبی آپ کہیے، آپ بتائیے، آپ انہیں آگاہ کیجئے، آپ انہیں خبر دیجئے، ان کا جواب آپ دیجئے۔ جواب آسمان سے آتا تھا، لیکن بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ لگا دیا جاتا تھا۔ لیکن جب بندوں نے، جب صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے بارے میں پوچھا، دعا عبادت ہے، جب عبادت کے تعلق سے سوال ہوا تو اللہ رب العزت نے بیچ میں نبی کو قل نہیں کہا، ڈائریکٹ کہا فإنی قریب۔ اتنا حساس سینسٹیو موضوع ہے، نہایت لطیف اور نازک موضوع ہے توحید۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، عنی میرے بارے میں، عبادی میرے بندے پوچھتے ہیں، فَإِنِّي قریب، فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قریب نہیں کہا، فَقُلْ إِنِّي قریب نہیں کہا، فَإِنِّي قریب۔ اللہ نے خود ڈائریکٹ جواب دیا، ہاں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو جواب بھی دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، وہ پکارنے والا وہ صحابہ کی شکل میں ہو، تابعین کی شکل میں ہو، عام کی شکل میں ہو، خاص کی شکل میں ہو، ہم اور آپ ہوں، ہم اور آپ سے بدتر کی شکل میں ہو، جو بھی ہو، وہ کتنا گنہگار ہو، کتنا اللہ کا نیک بندہ ہو، جو بھی اللہ رب العزت کو پکارے گا تو اللہ کہتا ہے کہ میں فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت کو پکارنا یہ عبادت ہے۔ عبادت میں کسی کو شریک کرنا کسی بھی طور پر گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی بھی طور پر کسی بھی سوچ کے ساتھ، اگرچہ وہ سوچ پر کتاب و سنت کی مہر لگا دی جائے اور ایک اچھے انداز میں اس کو پیش کر جائے کہ اللہ کے مقرب بندوں کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے ہی کیوں نہ اگر بیچ میں کسی کو لگایا گیا تو یہ شرک ہے، اب دیکھیں اگر وہ بندے کو لگاتا ہے اس لیے کہ یہ بندہ لے کے دے گا تو شرک اکبر ہے۔ پھر توبہ کے بغیر اگر ایسا شخص مر جائے تو پھر اس کی جہنم ہمیشہ ہمیش کے لیے، مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اللہ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق دے، عقیدہ توحید کے تقاضے پر کھرا اترنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔